we are going to see today is functional specifications, or in short, it is also called as FS, functional specification. So what is a functional specification? This is a document that is created by a functional consultant. This document is created by a functional consultant, and this document contains the details of logic to be implemented with the help of ABAP, or I can say ABAP consultant. Okay, so any custom development, may it be a report, may it be an enhancement, or there may be a change in form, or there may be a change in workflow. So whatever RISE-FW objects we have, if we have a RISE-FW object and if we are doing any custom coding in that particular object, then as a functional consultant, you need to create a FS document, functional specification document. So as I said, this document is created by a functional consultant because functional consultant is aware of the functionality that is to be implemented. हमको उसमें क्या लॉजिक डालना है वो फंक्शनल कंसल्टेंट को मालूम होता है, ABAPer को मालूम नहीं होता है. ABAPer knows how to code the logic, so we have to explain him the logic. So to explain that logic, we prepare a document. In that document, we write the logic. That particular document is called as functional specification, and this document is shared with the ABAP consultant for further development. So ABAP consultant, before developing or before writing that code, he will talk to you, he will try to understand the functionality from you, understand the logic from you, and then he writes the code, do the unit testing at his end, and then assigns back to you for testing. तो वो कोड करेगा, कोड करने के बाद खुद एक बार उसको टेस्ट करेगा, वैलिडेट करेगा कि उसने जो भी कोड किया है that is working fine, and then he will reassign back to you for further testing. तो आपको टेस्ट करके उसको वैलिडेट करना है कि जो भी आपने लॉजिक दिया था as per the logic the code is built. Okay, so this is what a functional specification. To start with, now to write a FS document based on the logic, if we are writing a report or whatever we are doing, we must be aware of some basic tables in SAP system. अगर हम सेल्स के कंसल्टेंट है तो हमको सेल्स के टेबल्स मालूम होना चाहिए, MM के कंसल्टेंट है तो हमको MM के टेबल्स मालूम होने चाहिए. सो हर एक कंसल्टेंट उसके मॉड्यूल में अगर कुछ कस्टम डेवलपमेंट करना है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द functional specifications for his area. जैसे if you are a MM consultant, you will prepare it for MM module. If there is another person who is working on SD, he will prepare for the custom developments in SD module. तो हर एक functional consultant उसके एरिया में जो भी आता है उसका लॉजिक बिल्ड करने में वो FS का यूज करता है. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला प्री रिक्विजिट्स में हमको बेसिक जो है वी नो वी शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, हमको क्या प्रोसेस में क्या चेंज कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, और एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट यू नो दोस थिंग्स. अगर आपने उस पर काम किया हुआ है तो आपको मालूम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो वी नो द स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. उसमें पहले या तो MRP से PR बनेगा या मैनुअल PR बनेगा, फिर उसका PO बनेगा, फिर गुड्स रिसिप्ट होगा, फिर इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा. In between this process, if
यू आर डूइंग एनी कस्टमाइजेशन, अगर आप उसमें कुछ कस्टम वैलिडेशंस डाल रहे हो ड्यूरिंग द गुड्स रिसिप्ट और ड्यूरिंग द पीओ क्रिएशन और ड्यूरिंग द इनवॉइस क्रिएशन, तो आपको मालूम है एज ए एमएम कंसल्टेंट यू नो पीओ का मतलब क्या होता है, गुड्स रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पीओ के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है, गुड्स रिसिप्ट के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है, पीओ का डेटा जाके कौन से टेबल्स में स्टोर होता है, गुड्स रिसिप्ट का डेटा जाके कौन से टेबल्स में स्टोर होता है, इनवॉइस का डेटा जाके कौन से टेबल्स में स्टोर होता है। सो बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस नॉलेज, अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो उसमें क्या लॉजिक बिल्ड किया जा सकता है, यू हैव टू डिसाइड इट एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट बिकॉज यू नो द सिस्टम वेरी वेल एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो आपको वो लॉजिक देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट, नाउ सपोज बिजनेस नीड्स अ report. What reports business needs? Business wants to display the purchase order numbers created by a particular user. ठीक है, what is the business requirement? Now this is a very simple example. Business requirement is business needs a report to display POs created by user आकाश। कोई यूजर है आकाश करके, उसका एसएपी आईडी रहेगा, फॉर एग्जांपल आकाश इज हिज एसएपी आईडी। सो बिजनेस मतलब क्या, परचेस डिपार्टमेंट the report should display the purchase orders created by that user. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so user came to you, user told you that he wants to see purchase orders created by that user. ठीक है, now there are two things. First thing is you should validate the requirement. Validate the requirement मतलब क्या, जो requirement business का user हमारे पास लेके आया है, whether it is worth working on that requirement. वो हमारे पास रिक्वायरमेंट लेके आया है कि उसको पीओ डिटेल्स चाहिए क्रिएटेड बाय ए यूजर। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज you should check whether his requirement is getting satisfied with the help of a standard SAP report. SAP ने हमको बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स दिए हैं हर एक फंक्शन में, मटेरियल मास्टर के लिए दिया है, वेंडर मास्टर के लिए दिया है, पीआर के लिए दिया है, पीओ के लिए दिया है, एवरीथिंग। So SAP has already given some inbuilt reports. Those reports we call as standard reports. तो अगर किसी स्टैंडर्ड रिपोर्ट में उसका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होता है तो वी डोंट हैव टू डू एनी कस्टमाइजेशन, उसके लिए हमको कस्टम रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी शुड डू इज वी शुड चेक if there is any standard report which satisfies his requirement, just tell him that this is the report, you use this report and your work is done. Okay, so in this particular case if he comes to you and tells you that I want to see the purchase order numbers created by user Akash, so there is a standard report given by SAP ME2N which is list display of purchase orders with PO numbers. So if I go to system and run this report, ME2N, purchasing documents per document number. So we can enter PO number here and display this report. Okay. Now our requirement is user wants to display the POs created by a user ID. So let me take this user ID here. Okay. And here you can see created by, somewhere in the input you should see
created by, if it's not there, see, created by, it's not there. Okay, so I'll go to dynamic selections. Here in header, you can see the created on and created by. So I'll double click here on created by. I'll add here username. And I'll execute it. So this report will display all the purchase orders that are created by this user. Okay. So SAP has already given a standard report. I don't have to build this report with the help of ABAP team. मैं इसको डेवलप नहीं करूंगा. तो यूजर जब कोई रिक्वायरमेंट लेके आता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड क्रॉस वेरीफाई और क्रॉस चेक इज दैट whether that is satisfied by available reports in SAP or whether that requirement is justified. ठीक है. अदरवाइज यूजर क्या करेगा, कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आएगा और हमको बोलेगा कि आप इस पे काम करो. ऐसा नहीं होता है. सो दैट शुड बी अ जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट. हर एक कंपनी में उसका अलग प्रोसेस होता है. तो अगर कोई बिजनेस का रिक्वायरमेंट है तो दैट गोज थ्रू मल्टीपल अप्रूवल्स. ठीक है. एंड अप्रूवल के बाद ही वो आईटी टीम के पास आता है कि ऐसा रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हमको काम करना है. ठीक है. सो नाउ द आइडिया व्हाई आई एम गिविंग यू दिस example is you should understand how to deal with the new requirements that are coming in. ठीक है. तो अब ये पहला रिपोर्ट था. स्टैंडर्ड रिपोर्ट में इसका रिक्वायरमेंट आता है. ठीक है. नाउ टू राइट अ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, okay, we will take the same example. Now same example, if I ask you to write the functional specification. अभी एक चीज तो हो गया है कि इसके लिए स्टैंडर्ड रिपोर्ट अवेलेबल है. यूजर पूछेगा तो हमने उसको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, यू कैन यूटिलाइज. बट नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट स्टैंडर्ड रिपोर्ट. ओके. हमको नहीं पता है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, या है भी तो कोई दिक्कत नहीं है. हमको इसका एफएस लिखना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस. So how to write logic to display purchasing document numbers or PO numbers created by a particular user. ठीक है. What is the requirement? We have to display purchase orders created by a user. और इसके लिए हमको एक रिपोर्ट बनाना है. ठीक है. तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए हमको ABAP को लॉजिक देना है. हमको एक एफएस डॉक्यूमेंट बना के ABAP को देना है. तो कैसे लिखेंगे? How you will write the logic? कैसे लिखोगे? So we have that the shortcuts. For example, for MARC in that type. No. What is the report? See, now you have to think like a programmer. Okay. हमको कोडिंग नहीं करना है, बट हमको ऐसे थिंक करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर को क्या चाहिए आउटपुट में. सो देयर आर थ्री थिंग्स. आउटपुट, ये हमारा अल्टीमेटली क्या है, दिस इज द आउटपुट. आउटपुट इज द मेन गोल. ये हमको चाहिए. आउटपुट में हमको क्या दिखाना है, परचेस ऑर्डर नंबर्स क्रिएटेड बाय यूजर आकाश. इस यूजर ने जो पीओ किए हैं वो पीओ हमको आउटपुट में डिस्प्ले करने हैं. नाउ दिस इज योर आउटपुट. व्हाट इज द इनपुट फॉर यू. इनपुट क्या है? सी, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यू गिव सम इनपुट, सिस्टम प्रोसेसेस दैट इनपुट एंड सिस्टम गिव्स यू आउटपुट. राइट. फॉर एग्जांपल, हमको अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करना है. तो हम क्या करते हैं, अमेजोन की साइट पे जाते हैं. द फर्स्ट
thing when you go to Amazon site, what you do? You give your user ID and password. Why? Because you want to access your account created there in the Amazon. So when you are entering your user ID and password, what you are doing? You are giving some input to system. The first thing when you enter Amazon dot, what is the www.amazon.in? Okay, what you are doing? By opening the browser and entering the link of Amazon there, you are giving input to system that I want to visit Amazon site. System क्या करता है? उस input को लेता है, Amazon की साइट को डिस्प्ले कर रहा है. अभी तुमको वहां पे Amazon का पूरा मेनू दिखेगा, वहां पे तुम लॉगिन पे जाओगे, उस पे क्लिक करोगे. Then again you give another input, your user ID and your password. If that is correct, if that password and user ID matches, then only you are allowed to enter into your own account. Otherwise, system will give the error. Now that error or success is nothing but the validation. वो Amazon validate करता है कि तुम्हारा user ID और password correct है कि नहीं. अभी वो validate किसके साथ कर रहा है? किसके साथ करता है? With your user ID and your password you have already stored. तुमने कुछ पासवर्ड सेट किया है तुम्हारी यूजर आईडी के लिए, वो अमेजोन के डेटाबेस के टेबल में स्टोर्ड है. तो जैसे ही तुम वहां पे तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे, अमेजोन वैलिडेट करता है उसको, इस यूजर का ये पासवर्ड है, बराबर है, तो यू आर अलाउड टू एंटर इनटू अमेजोन साइट. अदरवाइज सिस्टम विल गिव यू एरर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डज नॉट मैच. राइट? So what system is doing? System is taking an input and processing it and then giving you the output. प्रोसेस करते समय वो वैलिडेशन कर रहा है कि तुम्हारा यूजर और पासवर्ड करेक्ट है, तो यू आर अलाउड इनटू, तो वो आपको अमेजोन का साइट आपके अकाउंट में डिस्प्ले करेगा. अदरवाइज इट विल थ्रो एरर. तो दैट इज कोडेड, राइट? सो व्हाट सिस्टम डज इज सिस्टम टेक्स द इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू द आउटपुट. नाउ हियर आल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. हमको क्या चाहिए? हमको एक रिपोर्ट बनाना है, राइट? तो जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड रिपोर्ट को एक्सेस किया, तो हमने क्या किया? ME2N इस ट्रांजैक्शन कोड का यूज किया. सो ME2N एंटर करके हमने सिस्टम को इनपुट दिया कि हमको ME2N रिपोर्ट को एक्सेस करना है. तो सेम वे जैसे स्टैंडर्ड टी कोड हमने यूज करके सिस्टम को बताया, अगर कस्टम रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमको एक ट्रांजैक्शन कोड क्रिएट करना पड़ेगा. सो इफ इट्स अ Z रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट, देन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ट्रांजैक्शन कोड एज वेल. और अगर कोई कस्टम रिपोर्ट या कोई कस्टम ट्रांजैक्शन कोड हम बना रहे हैं, सो दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ Z एंड Y. तो कोई भी टी कोड अगर Z या Y से स्टार्ट करता है, दैट इज अ कस्टम रिपोर्ट. फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने टी कोड दिया, जो रिपोर्ट अभी हम बनाने जा रहे हैं उसका टी कोड हमने डिसाइड किया ZME2N. Why ZME2N? Because it is replica of ME2N. तो ये Z रिपोर्ट के साथ बनाना है, इसलिए मैंने उसके सामने Z लगा दिया. या तो Z लगा सकते हैं या तो Y लगा सकते हैं. तो कोई भी Z ट्रांजैक्शन कोड अगर दिखा तो इट मींस दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड SAP ट्रांजैक्शन कोड, दैट इज अ कस्टम ट्रांजैक्शन कोड. क्लियर है? Yes, sir. एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद Z और Y इज कस्टम. वो ABAP के हेल्प से हमने क्रिएट किया हुआ है. नाउ तो आउटपुट में हमको PO नंबर्स डिस्प्ले करने हैं. इनपुट क्या है हमारे लिए? इनपुट में क्या है? इनपुट इज क्रिएटेड बाय यूजर आकाश. सिस्टम को हमको क्या बोलना है? मुझे OPO चाहिए जो आकाश की यूजर आईडी से बने, राइट? Okay. तो Yes. पहला इनपुट तो यह है कि हम ZME2N ट्रांजैक्शन कोड को डालेंगे, एंटर करेंगे. नाउ जैसे ही जाएंगे तो जैसे हमको यहाँ पे ME2N का रिपोर्ट डिस्प्ले होता है, दिस इज योर इनपुट स्क्रीन टू प्रोवाइड योर इनपुट डिटेल्स और to filter the output, what inputs you want to give to the system. तो जब हम Z रिपोर्ट बनाएंगे तो वहां पे भी हमको एक स्क्रीन यहाँ पे देना पड़ेगा. उस स्क्रीन पे हमको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से. क्या इनपुट लेना है? इट्स यूजर आईडी हियर. कौन से यूजर ने क्रिएट किया हुआ
परचेस ऑर्डर्स हमको डिस्प्ले करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था अभी, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी का इनपुट दिया था, राइट? Yes. So if I enter here, पहला इनपुट हमने सिस्टम को दिया me2n, रिपोर्ट डाला, रिपोर्ट डालते ही हमको क्या मिला, ये सिलेक्शन स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन स्क्रीन बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, डिटेल्स दैट वी वांट टू पास एज अ इनपुट टू सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्रिएटेड बाय में यूजर आईडी डाला था, बराबर। तो हमारा जो रिपोर्ट बनेगा उसके सिलेक्शन स्क्रीन में भी हमको क्या देना है, क्रिएटेड बाय, और यहाँ पे एक इनपुट स्क्रीन होना चाहिए, इनपुट फील्ड होना चाहिए। सो दिस फील्ड्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर ऑल इनपुट फील्ड्स। यहाँ पे हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, सिस्टम को हम इनपुट्स दे रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इनपुट फील्ड्स। हियर यू सी दिस एरो, दिस एरो इज फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस। अगर हमको एक से ज्यादा इनपुट्स देने हैं सिस्टम को तो हम इस मल्टीपल सिलेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या ये हम क्रिएट करते हैं? नो, ये सब ABAP क्रिएट करता है। हमको क्या है, उसको सिर्फ बताना है कि हमको कैसे चाहिए। तो हमारा जो इनपुट स्क्रीन होगा उस पे क्या होना चाहिए, PO created by Akash. ये जो है ये मेरे इनपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ठीक है। Okay, sir. तो जब मैं इस रिपोर्ट को रन करूंगा तो यहाँ पे इनपुट में मैं क्या पास करूंगा, क्रिएटेड बाय, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ एक ही यूजर के लिए चाहिए तो आई एम यूजिंग दिस मल्टीपल सिलेक्शन सो दैट सिर्फ आकाश ही नहीं, कोई और यूजर भी अगर उसने क्रिएट किए हुए पीओ देखना चाहता है तो वो उसका यूजर आईडी डाल के उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसने किए हुए परचेस ऑर्डर्स उसको डिस्प्ले हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन भी दे दिया, और यहाँ पे इनपुट स्क्रीन में हम क्या दे रहे हैं, क्रिएटेड बाय। अगर सपोज करो यू वांट टू गिव द डेट रेंज एज वेल, तुमको इसमें डेट रेंज भी देना है, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। सो आई वांट टू सी POs created by Akash during last 30 days, राइट? तो उसके लिए हमको डेट का भी यहाँ पे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी डॉक्यूमेंट डेट है, डिलीवरी डेट इज देयर, डॉक्यूमेंट डेट इज देयर, राइट, फ्रॉम एंड टू। तो यहाँ पे अगर मैं दे सकता हूँ कि लास्ट 30 डेज, तो 7th जुलाई से लेके 8th जुलाई तक। तो अगर मैंने इनपुट दे दिया तो सिस्टम पास दिस फिल्टर फॉर लास्ट 30 डेज while executing the output. So likewise, on the selection screen, on the input screen, you can decide based on the business requirement what all information you want to display on the input screen. System को input देना क्या क्या है, you can decide. And then output. आउटपुट में यूजर को क्या क्या डिस्प्ले करना है। तो आउटपुट में यूजर को मोर देन वन कॉलम्स ही मे नीड, ठीक है। उसको हो सकता है पीओ नंबर चाहिए, पीओ लाइन आइटम नंबर चाहिए, प्लांट चाहिए, in which plant he has created it. He may be interested in seeing the amount of the purchase order, right? तो यहाँ पे अगर हमने me2n को एग्जीक्यूट किया तो हमको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पीओ नंबर है, लाइन आइटम नंबर है, पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप है, देन यू हैव द वेंडर, डॉक्यूमेंट डेट, ओपीओ कब बना था, शॉर्ट टेक्स्ट क्या हमने ऑर्डर किया था, मटेरियल ग्रुप, ऑल दीज डिटेल्स आर देयर, अमाउंट है। सेम वे जब हमको यूजर रिक्वायरमेंट दे रहा है तो वो हमको आउटपुट में उसको क्या क्या चाहिए वो हमको बताएगा। अगर वो नहीं बता रहा है तो वी हैव टू आस्क हिम कि आउटपुट में तुमको क्या क्या चाहिए। होता क्या है, जनरली यूजर रिक्वायरमेंट देते समय बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट चाहिए। पहले वो बोलेगा मुझे पीओ नंबर और लाइन आइटम नंबर ही दे दो, पीओ का लाइन आइटम नंबर, और प्लांट दे दो, बस मेरे लिए इतना सफिशिएंट है।
जैसे ही तुम रिपोर्ट बनाओगे, बाद में वो आएगा बोलेगा नहीं इसमें और 2 कॉलम ऐड के दे दो या एक और कॉलम ऐड करके दे दो, तो ये रीवर्क हो जाता है. सो वेन एवर यू टेक एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर, you have to ask him and you can also give some inputs to him. अगर तुम रिपोर्ट बना के ही ले रहे हो तो ये और इंफॉर्मेशन भी तुम ले लो, तुमको ये अच्छा रहेगा, so that you can avoid the rework. Otherwise जनरली ऐसा होता है, यूजर को जब भी कोई रिपोर्ट दिया जाता है, जैसे वो टेस्टिंग करने लगता है, वो ही कम्स अप विथ मोर रिक्वायरमेंट्स, उसको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए होते हैं. तो पहले ही उसके साथ एक डिस्कशन करके उसको हम समझा सकते हैं कि उसके काम के हिसाब से, वो जिस फंक्शन में काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन और एडिशनल उसी रिपोर्ट में दिया जा सकता है. दैट यू कैन प्रपोज हिम, इफ ही एक्सेप्ट्स वेल, इफ ही डजंट एक्सेप्ट दैट इज आल्सो फाइन. ठीक है. सो लाइकवाइज ही विल गिव यू कि उसको आउटपुट में क्या क्या देखना है. सो फॉर एग्जांपल, फॉर नाउ वी विल कंसीडर दिस 4 details in the output like PO number, PO line item number, plant and amount he wants to display in the output. एक सेकेंड ना. ठीक है. नाउ वी हैव द रिक्वायरमेंट. क्या रिक्वायरमेंट है? हमको इनपुट में 2 फील्ड्स लेना है. इनपुट्स पास करते समय कौन से यूजर ने पीओ बनाया और टाइम, डॉक्यूमेंट डेट हमको उसमें डालना है, लास्ट कितने दिन का या जितने भी दिन का उसने पीओ बनाया है वो उसको देखना है. सो वी हैव 2 fields in the input like created by and suppose document date. और आउटपुट में हमको 4 कॉलम डिस्प्ले करने हैं. पीओ नंबर डिस्प्ले करना है, पीओ का लाइन आइटम डिस्प्ले करना है, प्लान डिस्प्ले करना है, अमाउंट डिस्प्ले करना है. सो दिस इज योर इनपुट. ठीक है. इनपुट स्क्रीन में तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि क्रिएटेड बाय एक इनपुट फील्ड होना चाहिए विथ मल्टीपल सिलेक्शन. डॉक्यूमेंट डेट इज इनपुट फील्ड विथ मल्टीपल सिलेक्शंस. एंड आउटपुट में हमको ये 4 कॉलम डिस्प्ले करने हैं. PO number, PO line item number, plant and amount. Now, once you have these details, then you start writing the FS, functional specifications. ठीक है. Now, how to write a FS or functional specifications. तो हर एक कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से तुमको उसमें डालना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें उसमें होती है, रिक्वायरमेंट किसने दिया, किसने उसको अप्रूव किया, को किस कैटेगरी के अंडर आता है, रिपोर्ट के अंडर आता है, वर्कफ्लो के अंडर आता है, इंटरफेस के अंडर आता है, उसमें कुछ क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं. तो एक हर एक कंपनी का अपना अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा जिसमें इसको तुम राइट करोगे. ठीक है. तो जो भी एप्लीकेबल पैरामीटर्स है यू नीड टू सिलेक्ट and then there will be a space or header where you can add your logic. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे लॉजिक है ये तुमको यहाँ पे लिखना है. तो उस अगर 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसमें एक जगह पे कहीं पे हेडिंग होगा लॉजिक, जिसके अंडर में इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का लॉजिक तुमको लिखना है. ठीक है. Now when you start writing the logic, the first thing that you should mention here is what is the background of doing or implementing this particular logic. So business requirement क्या है. ठीक है. कोई भी रिपोर्ट हम अपने मन से नहीं बना सकते हैं, कोई भी वैलिडेशन हम हमारे मन से नहीं डाल सकते. इट हैज टू कम फ्रॉम द बिजनेस. बिजनेस की तरफ से वो रिक्वायरमेंट हो अप्रूव होके आना चाहिए, तभी हम उस पर काम करते हैं. तो बिजनेस रिक्वायरमेंट, हियर यू नीड टू write 4-5 lines or
10 lines, 15 lines if the requirement is big. Giving the background of this requirement. ये requirement क्यों आया? What is the need of this requirement? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपना एग्जांपल है उसमें you can write that user needs to display a report for purchase orders created by user and he wants a filter on document date as well, and in output he wants to display these 4 fields. That is a business requirement simply. ठीक है, so you write 2-3 lines on that particular business requirement, then you explain the logic to ABAPer. Here in this document you have to write the logic explaining the ABAPer कि उसको ये details कैसे extract करना है. So the first thing you can show him here with the help of any screenshot. तो input screen पे तुमको क्या क्या चाहिए. So on our input screen, as we selected here, created by and document date, these are the 2 fields that we want to show. Created by, second is document date. ठीक है, and you just add here with multiple selection option. एक से ज्यादा यूजर आईडी हम उसमें डाल सकते हैं. सेम फॉर डेट with multiple selection option. ठीक है, now created by and document date, ये हमारा इनपुट स्क्रीन पे 2 फील्ड्स होनी चाहिए जिसमें हम इनपुट डालेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आएगा, राइट. और आउटपुट में क्या क्या कॉलम्स हमको डिस्प्ले करने हैं? 4 कॉलम्स हमको डिस्प्ले करने हैं. पीओ नंबर, पीओ लाइन आइटम नंबर, प्लांट, 3 ही ले लेते हैं. ठीक है, आउटपुट में हमको ये 3 डिटेल चाहिए, इनपुट में हमको ये 2 वैल्यूज हमको पास करना है. ठीक है, नाउ ये हमने दिया कि इनपुट स्क्रीन में ये चाहिए, आउटपुट में ये 3 कॉलम्स हमको डिस्प्ले करना है. नाउ अभी तक हमने उसको लॉजिक नहीं बताया है. ठीक है, अभी हमको उसको लॉजिक देना है. क्या लॉजिक देना है कि उसको ये डिटेल्स कहां से मिलेंगे? क्रिएटेड बाय यूजर आईडी, ठीक है, और डेट हमने दे दिया. फॉर एग्जांपल आकाश इनपुट स्क्रीन में डाला हमने और डेट डाला लास्ट 30 डेज का. ठीक है, तो क्रिएटेड बाय, सपोज करो फर्स्ट हमने सिर्फ यूजर नेम डाला क्रिएटेड बाय आकाश, तो वो जब एग्जीक्यूट करेगा, राइट, तो उसको क्या चाहिए? पीओ नंबर्स क्रिएटेड बाय यूजर आकाश. तो वो परचेस ऑर्डर नंबर्स उसको कहां पे मिलेंगे? How he has to search the PO numbers to display on the output screen, that also we need to tell him कि उसको PO numbers मिलेंगे कहां पे. उसको सिर्फ कोड लिखना मालूम है, बाकी लॉजिक हमको उसको देना है. ठीक है, सो कहां पे मिलते हैं PO numbers? In which table you see the purchase order numbers? PO tables कौन से टेबल्स है परचेस ऑर्डर्स के? ABELN. PO table I am asking you, PO not table. fields. Purchase order table name EK, EKKO. EKKO and EKPO. EKPO. EKKO is what table it is?
Purchasing document header. Header table, very good. ठीक है. So here the header data is stored and EKPO is line item details are stored. Purchase order में जो header के details हैं that are stored in EKKO table, that is why it is called as header table, and PO के line item details जो हैं that are stored in the EKPO table, that is why it is called as line item table. तो अभी जो रिपोर्ट हमको बनाना है, ठीक है, तो क्रिएटेड बाय एंड डॉक्यूमेंट डेट, तो पीओ क्रिएटेड बाय, पीओ किसने बनाया, एंड पीओ का डॉक्यूमेंट डेट, these two fields are available in which table? Header table, EK PO टेबल. ठीक है, तो ये जो भी फील्ड्स हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, these fields are stored in table EK KO header table. ठीक है, so I'll write here EK KO and here also I'll write the EK KO. ठीक है, now created by and document date are available in EK KO table. Now we need to provide him the field name as well. कौन सी field में वो data store होता है in EKKO. So I'll go to now EKKO, SE16N or SE11 you can use. Now here enter EKKO, purchasing document header. And here you see the technical names. These are field names and this is field label. Field का description यहाँ पे है और उसका technical name यहाँ पे है. Now ABAPer को हमको क्या देना है, technical names देने. तो पहले तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड बाय EKKO टेबल में है, इसका फील्ड नेम भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो व्हाट इज द क्रिएटेड बाय, हियर यू कैन सी ERNAM. सो हियर पेस्ट इट. सो क्रिएटेड बाय refers to EKKO ERNAM. So this is the field in which this value is stored, created by. So when you create a PO, so if you create a PO using your user ID will be stored against that purchase order number in EKKO table in the field ERNAM. So we are telling ABAPer created by का जो भी वैल्यू है वो EKKO टेबल में ERNAM में स्टोर होता है. सेम वे डॉक्यूमेंट डेट मतलब PO कब बना, that date is also stored here in EKKO table. So it will not be there by document date. You can search also Control F, document date. See here, document date, BDAT. Copy this, EKKO BDAT. Clear? Any doubt? So document date is stored in EKKO table BDAT field. Created by is stored in EKKO ERNAM field. ठीक है, now we will write the logic. तो अभी हम अब आपको बताएंगे now. Let us write the fields for PO number, PO line item and plant as well, and then we will write the logic. तो PO number कहाँ पे store हो रहा है, purchasing document. This is EBELN. So this is PO number. PO number is stored in EBELN field. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा EKKO EBELN. PO line item number. Now this is header table. EKKO is header table. Line item details are stored in
line item table, that is EKPO. Here you can see purchasing document and item. So this item EBELP is what is the PO line item number EBELP. तो यहाँ पे मैंने EKKO EBELP डाला, ठीक है. And then plant is again maintained at line item. PO में line item level पे हम plant को डालते हैं. तो line item table में हमको plant मिलेगा. यहाँ पे you can see plant in EKPO table. So for plant, the technical name is works. Copy this. And here we will write EKPO works. तो इनपुट देने के लिए हमने फील्ड्स लिखे, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए भी हमने फील्ड्स लिखे, ठीक है. Now once you do this, you can write the logic, ठीक है. For example, you can say to get the PO number, to get the PO number, हमको आउटपुट में क्या चाहिए, PO. तो PO लेने के लिए, ठीक है, इनपुट में क्या हम दे रहे हैं, created by and documented. So if you are running the report only by passing the created by, ठीक है, so we'll write like this, get the input first option is if you are only using created by as an input, क्योंकि यूजर क्या करेगा, इनपुट में यूजर आईडी डालेगा, ठीक है, in created by field. So if he is putting a value in created by field, pass this value. इसमें क्या वैल्यू रहेगा, वैल्यू आकाश रहेगा, बट वो कौन से फील्ड में जा रहा है, क्रिएटेड बाय EKKO ERNAM, ठीक है. तो जो भी वैल्यू यूजर डाल रहा है, जैसे आकाश उसने डाला इनपुट में, ठीक है. सो पास दिस वैल्यू टू EKKO ERNAM. तो हम उसको बोल रहे हैं कि तू EKKO टेबल में ERNAM में उस वैल्यू को पास करना, कौन सी वैल्यू को, यूजर आईडी को, ठीक है. नाउ जब तुम इस वैल्यू को इस टेबल में पास करोगे, EKKO में ERNAM में, क्या डाला मैंने यहाँ पे, यूजर आईडी डाला, ठीक है. सो इनपुट स्क्रीन में मैंने यूजर आईडी डाला, तो मैं एबापर को बोल रहा हूँ कि पास दिस यूजर आईडी टू EKKO ERNAM. ERNAM इस फील्ड में इस वैल्यू को पास करो और इसको एग्जीक्यूट करो. एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग नंबर ऑफ हिट्स 204. 204 परचेस ऑर्डर्स यहाँ पे मुझे मिले. क्यों मिले, बिकॉज ऑल these 204 परचेस ऑर्डर्स आर क्रिएटेड बाय दिस यूजर, ठीक है. इस यूजर ने 204 PO क्रिएट किए हैं, तो मुझे आउटपुट में ये 204 POs यहाँ पे दिख रहे हैं. ऑल द परचेस ऑर्डर्स आई एम एबल टू सी क्रिएटेड बाय दिस यूजर, राइट. अभी इसमें से मुझे यूजर को क्या दिखाना है, PO नंबर, बराबर. आउटपुट में मुझे क्या दिखाना है, PO नंबर, PO लाइन आइटम नंबर एंड प्लांट. तो EKKO टेबल में मुझे जो आउटपुट में दिखाना है, उसमें से मेरे पास सिर्फ PO नंबर है. PO लाइन आइटम नंबर इस टेबल में नहीं है, प्लांट नंबर भी इस टेबल में नहीं है, बिकॉज दोज टू फील्ड्स आर स्टोर्ड इन EKPO टेबल. तो इस टेबल में मुझे क्या मिल रहा है, PO नंबर मिल रहा है. सो आई विल से पास दिस वैल्यू टू EKKO ERNAM एंड गेट, वहां से ले लो, क्या लेना है, PO नंबर EKKO
टेबल का EBELN, क्योंकि पीओ नंबर कहां पे स्टोर्ड है? परचेसिंग डॉक्यूमेंट में स्टोर्ड है. सो गेट, यू कैन मेंशन हियर परचेसिंग डॉक्यूमेंट पर, और यू कैन सिंपली से गेट पीओ नंबर और उसका टेबल नेम और फील्ड नेम बताना. ठीक है, तो वो जब कॉलम में डिस्प्ले करेगा तो EKKO EBELN को डिस्प्ले करेगा. ठीक है, नाउ इससे हमको क्या मिला? इससे हमको फर्स्ट फील्ड मिला. क्या मिला? पीओ नंबर. ठीक है, जो आउटपुट में हमको दिखाना है. हमने यूजर आईडी को पास किया, परचेस ऑर्डर नंबर को के पीओ टेबल से हमने पिक किया. ठीक है, गेट परचेस ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डिस्प्ले एन आउटपुट अंडर कॉलम और विथ कॉलम नेम पीओ नंबर. तो इसमें जो भी वैल्यू मिलेगा उसको पीओ नंबर कॉलम में डिस्प्ले कर दो. ठीक है, क्लियर आहे इथपर्यंत? येस सर. नाउ मला हा पीओ मिळाला, मी हे पीओ कॉपी केले. ठीक आहे, इथून मला काय भेटलं? मला हा पीओ भेटला, मी हा पीओ कॉपी केला. नाउ पीओ लाईन आयटम नंबर अँड प्लांट. जर मला हा इथे एकच पीओ असेल तर त्या पीओचा लाईन आयटम नंबर आणि त्याचा प्लांट सुद्धा आउटपुट मध्ये डिस्प्ले करायचा आहे. किंवा इथे मला 204 पीओ भेटलेले आहेत, या 204 पीओ चे लाईन आयटम नंबर आणि त्याच्या समोर त्याचा प्लांट सुद्धा मला रिपोर्ट मध्ये डिस्प्ले करायचा आहे. तर पीओ नंबर भेटला. पीओ नंबर भेटल्यानंतर once you got the PO number, you want to display the line items in that PO and plant that is used in that line item. ठीक है, so what you will do next, you will copy this PO number and go to EKPO table. EKPO टेबल में आके मैं जब यहाँ पे PO नंबर डालूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इस टेबल में उसका लाइन आइटम नंबर मिलेगा और उसका प्लांट नंबर मिलेगा. So what should be my next logic? Pass this value to PO number, PO number, or you can mention pass value from step A, or you can mention pass PO number, that is EKKO EBELN, बराबर, yes, to to EKPO, PO. बरोबर, EBELN. EKPO टेबलच्या PO नंबर मध्ये वर भेटलेला PO नंबर एंटर करायचा. इथे जो PO भेटला तो PO EKPO टेबलच्या EBELN, कारण EKPO मध्ये सुद्धा the value is stored under EBELN field. ठीक है, सो पास EKKO EBELN. EKKO मध्ये जो PO नंबर भेटला तो EKPO च्या टेबल मध्ये PO नंबर ह्या फील्ड मध्ये पास करायचा, म्हणून EKPO EBELN. क्लियर? Yes sir. So pass PO number EKKO EBELN to EKPO EBELN. याच्यामध्ये आपण पास केला. पास केल्यानंतर आपल्याला काय घ्यायचं इथून या टेबल मधून? अँड गेट PO line number, लाइन आइटम item. नंबर. हे स्टोर्ड आहे तो EKPO EBELP. याला आपण आइटम नंबर इज स्टोर्ड इन EBELP. ठीक है, पास PO number to EKKO EBELN to EKPO EBELN and get PO line item number that is stored in EKPO EBELP and आणखीन आपल्याला काय पाहिजे? प्लांट. Get plant and EKPO get plant EKPO works. works. And display under column PO line item and plant respectively.
प्लांट को प्लांट के कॉलम के नीचे दिखाना है, परचेसिंग ग्रुप को परचेसिंग ग्रुप के नीचे दिखाना। क्लियर, अंडरस्टूड? Yes, sir. So when you execute this, you will get the PO line item number 10 and plant YP0. So in output, you will get this PO number, line item number 10 and plant as YP0. This is how you give the logic. Clear? Clear, sir. So for that, you should be aware of the tables and fields that are used. So material master, vendor master, PIR, PO, PR, contract, scheduling agreement. List down all the tables, execute all the tables, and you should remember, not necessary, पण माहित असलेलं कधी पण चांगलं. जे इम्पॉर्टंट फील्ड्स आहेत, लाईक कंपनी कोड आहे, प्लांट आहे, वेंडर आहे, मटेरियल आहे, परचेसिंग ग्रुप आहे. दिस इम्पॉर्टंट फील्ड्स, टेक्निकल नेम्स, हे जसं आपण काम करत जातो तसं ते आपल्या लक्षात राहतात. पण आता सुद्धा यू कॅन प्रॅक्टिस दिस. जे फील्ड्स आहेत ते लिस्ट डाऊन कर, त्याला मल्टिपल Yes, sir. वेळेला एक्झिक्यूट करत जा, ट्राय टू रिमेंबर इट. इंटरव्ह्यू मध्ये काही वेळेला तुला विचारलं जाईल की याचा टेबल, याची इन्फॉर्मेशन कुठल्या टेबलमध्ये स्टोअर आहे. सो यू शुड बी एबल टू answer it that this particular details are stored in this table. So for example, if I ask you, what is the table in which header data of purchase order is stored? EK KO. PKO. Line item EK PO. What is the header data for header data table for purchase requisition? EBN. EBAN is the only table. Header details as well as line item tables are stored in the same table. ठीक आहे. There is no separate two tables in case of PR. तर कन्फ्यूज करण्यासाठी ते तुला असं विचारू शकतात. कन्फ्यूज नाही व्हायचं. PR साठी एकच टेबल आहे, EBAN. Same way if you go to PIR, EINA and EINE. What is difference between EINA and EINE? EINA मध्ये फक्त जनरल डेटा स्टोअर होतो. जनरल डेटा. EINE मध्ये प्लांट आणि पर्चेसिंग ऑर्गनायझेशनचा डेटा स्टोअर. Same way if you go to vendor master, LFA1 जनरल डेटा, LFB1 company code data, LFM1 purchasing organization. Purchasing. Yes. Material master, MARA general data, MARC plant data, MBEW accounting data, MARD storage location data. ठीक आहे. तर हे टेबल्स आपल्याला सांगता आले पाहिजेत आणि त्यातल्या फील्ड्स कशा डिस्प्ले करायच्या ते सुद्धा आपल्याला लॉजिक लिहित असताना हेल्प करतात. सो प्रॅक्टिस दिस, डिस्प्ले करायचे टेबल्स. ठीक आहे. अँड नाउ यू टेक सम एक्झाम्पल्स. आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, हाऊ टू डिस्प्ले द PO. नाउ यू टेक एन एक्झाम्पल. You want to display list of materials created in plant so and so. You want to display list of vendors created in purchasing organization so and so. Write it down. ठीक आहे. क्लिअर? ओके सर. ठीक आहे. तर हे अशा पद्धतीने आपल्याला ABAP ला एक डॉक्युमेंट बनवून द्यायचं असतं, त्याला आपण फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट म्हणतो. हे इनपुट्स दिले की ABAP काय करेल, तो ह्या लॉजिक थ्रू गो थ्रू करेल. तो काय करेल, एक PO नंबर घेईल, EKPO मध्ये जाईल, त्याला पास करेल, EKPO EKKO ERNAM मध्ये. मग तिथे जो PO नंबर त्याला भेटेल तो घेईल, EKPO मध्ये जाईल, त्याला डिस्प्ले करेल, एक्झिक्यूट करेल, चेक करेल की त्याला त्या व्हॅल्यूज भेटतायत का. त्याला भेटल्या ओके असेल, त्याला जर क्लिअर असेल तर तो डेव्हलप करेल. त्याला जर काही डाऊट्स असतील तर तो परत आपल्याकडे येईल की तू हे असं असं लिहिलेलं आहे पण मला हे काही कळत नाही, एक्सप्लेन मी. सो वी नीड टू एक्सप्लेन. ठीक आहे. सेम वे जसं आपण इथे क्रिएटेड बाय दिलं तसं डॉक्युमेंट डेट वरती जर लॉगिन इनपुट द्यायचं असेल तर इनपुट मध्ये युजर काय करेल, डॉक्युमेंट डेट मध्ये फ्रॉम आणि टू व्हॅल्यू टाकेल. सो व्हॉट वी विल से सेम, फक्त इथे काय असेल, डॉक्युमेंट डेट मध्ये जर त्याने इनपुट दिलेलं असेल तर EKPO EKKO BEDAT. सो हिअर वी विल से पास दिस व्हॅल्यू टू EKKO BEDAT अँड गेट परचेसिंग डॉक्युमेंट नंबर. कारण आपण इनपुट मध्ये जर डॉक्युमेंट डेट जरी टाकली तरी तो आपल्याला आउटपुट मध्ये POच देणार आहे.
तर इथे आपण किंवा दोन्ही टाकले, डॉक्युमेंट डेट, इथे आपण एक व्हॅल्यू दिली. काय दिली इनपुट मध्ये? फ्रॉम 1st of August टू 7th of August. तर सिस्टम काय करेल, या व्हॅल्यूज घेईल ऍज अ फिल्टर. नाव आपल्याकडे दोन गोष्टी आहेत. एक, पहिले इनपुट सिस्टम काय घेईल, आपण दोन्ही इनपुट एकत्र टाकले, सिस्टम पहिल्यांदा युजरनी जाईल, मग तो लॉजिक लिहिताना ह्या गोष्टी मॅनेज करेल ॲपवर. तो दोन्ही इनपुट घेईल, EKKO ला एक्झिक्यूट करेल. ठीक आहे. आता इथे एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला सिस्टमने काय केलं, फिल्टर करून दिलं डेट वरती आणि युजर वरती. तर तो पण जेव्हा लॉजिक लिहितो तो ह्या गोष्टी हँडल करतो त्याच्यामध्ये. तर मग जर आपण फक्त डेटनी जरी दिलेलं असेल, फॉरगेट अबाउट दिस क्रिएटेड बाय 1st of August टू 7th of August, काय भेटलं त्याला, 3 POs भेटले. ठीक आहे. तर आउटपुट मध्ये तो काय करेल, परत आपण हेच लिहिणार, गेट दी PO नंबर्स अँड डिस्प्ले अंडर PO नंबर. तर तो त्याला 3 PO भेटले, तो हे 3 PO घेईल, मग परत तो EKPO टेबलला जाईल, EKPO टेबल मध्ये इथे ह्या 3 PO नंबर तो पास करेल आणि याचा लाईन आयटम नंबर आणि प्लांट नंबर तो घेईल. ठीक आहे. सो लॉजिक विल बी सेम, पास दिस व्हॅल्यू टू EKKO BEDAT. इथे आपण पास केलं, PO नंबर घेतले आणि EKPO ला ते PO नंबर पास करून त्याचा लाईन आयटम नंबर आणि प्लांट नंबर आपण डिस्प्ले केला. Clear. ठीक आहे. So this Yes, is sir. how you have to write the functional specifications.